दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में गणेश चतुर्दशी की शुभकामनाओं के साथ। जी हाँ, आज सुबह का दिन है गणेश चतुर्दशी। आपने भी अपने यहाँ भगवान गणेश को बिठाया होगा, जो उनकी आस्था भगवान गणेश पर है। तो उनको नमस्कार करते हुए खबरों के दौर में हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा देश होगा जिसको बर्दाश्त होगा कि उसके बारे में किसी और देश की संसद में उल्टा सीधा कहा जाए? ऐसा कौन सा देश होगा जो यह बर्दाश्त करेगा कि किसी और संसद में वहां पर आरोप लगाए जाएं भारत पर कि उसके ऑफिशियल्स उसके देश की नागरिकों की हत्या के जिम्मेवार हैं? ऐसा कौन सा देश होगा? जी हां, देश का नाम मैं खोल ही देता हूं। अभी अभी आपने देखा होगा G20 पर बड़ा फोटो खिंचैया हो रहा था जस्टिन ट्रूडो के साथ प्रधानमंत्री मोदी का। और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उनके समर्थक ये दावा भी करते हैं कि विश्व नेता हैं, विश्व नायक हैं, विश्व गुरु हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन ये किस तरह की थुथई हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से मतलब बेइज्जती हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। देश के 140 करोड़ लोग या 145 करोड़ लोग या 135 करोड़ लोग जो इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो भारत ही कहलाते हैं और इन सब से मिलकर भारत माता बनती है। जब ये सब होता है और यदि हमारे देश के बारे में कनाडा की संसद में यह बोला जाता है वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा कि साहब हमारे नागरिकों की हत्या में भारत के सरकारी लोगों का हाथ हो सकता है, यह बयान दिया जाता है प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा अपनी संसद में। बयान क्या था? बयान में यह दावा किया जाता है कि साहब भारत ने जो है हम पर जो है उनके ऑफिशियल ने हमारे नागरिकों की हत्या की है, और हत्या भी किसकी? जिसको खालिस्तान समर्थक कहा जाता है, हरदीप पुरी निज्जर का नाम वो कोट करते हैं और साथ में कहते हैं कि कनाडा इस तरह की हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसने G20 में प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की थी इस बारे में कि उनके कुछ ऑफिशियल इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन क्या कह रहे ट्रूडो, ये सुन लीजिए पहले और उसके बाद सुनिए कि किस तरह से बिना चेतावनी के भारतीय राजनयिक को ब्रिटेन से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। To inform the House of an extremely serious matter. I just informed the leaders of the opposition directly. I want now to speak with all Canadians. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. It is contrary to the fundamental rules by which free, open, and democratic societies conduct themselves. As you would expect, we've been working closely and coordinating with our allies on this very serious matter. In the strongest possible terms, I continue to urge the government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. I also expect it to reiterate that its position on extrajudicial operations in another country is clearly and unequivocally in line with international law. I know many Canadians, particularly members of the Indo-Canadian community, are feeling angry or perhaps frightened right now. Let us not allow this to change us. Let us remain calm and steadfast in our commitment to our democratic principles and our adherence to the rule of law. I would like to extend my condolences
to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by three principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians. ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों, बीबीसी का जो अखबार है वो लिखता है एक खबर में बताता है कि जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर संबंध भारत से जोड़ा, भारतीय राजनयिक को निकाला और भारत और कनाडा के संबंधों में तल्खी और बढ़ गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है। भारत सरकार निज्जर की हत्या के आरोपों को खारिज करती रही है। निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की जांच में मद्देनजर कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया है। लेकिन हिंदुस्तान के हवाले से जो खबर छापी गई थी, ये भी छापी गई थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह से कनाडा में बैठे खालिस्तानी भारत के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे हैं। हिंदुस्तान में बताया गया था कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में शामिल होने आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से खालिस्तान का मसला उठाया था। इस पर ट्रूडो ने भी भरोसा दिया था वह अपने देश में अलगाववादी तत्वों पर लगाम कसेंगे। हालांकि कनाडा में एक्टिव खालिस्तानियों की हरकतें अब भी कम नहीं हुई हैं। 10 सितंबर को ही खालिस्तान के वैंकूवर के सरी स्थित एक गुरुद्वारे में भारत के खिलाफ जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें खालिस्तान के संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरुपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो सामने आया और उसने ये कहा था कि भारत को कनाडा में अपना दूतावास बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और एस मंत्री को जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी। ये दुस्साहस कर रहा है वहां बैठा हुआ कनाडा का एक नागरिक, जिसके बारे में जस्टिन ट्रूडो अपनी संसद में पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्या कनाडा ने अपने आस्तीन में इस तरह के लोगों को पाला हुआ है जो हमारे देश की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं? कनाडा के प्रधानमंत्री गलत है जो ये दावा कर रहे हैं, अखबार दावा कर रहे हैं कि साहब मोदी जी ने आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जस्टिन ट्रूडो से बात की थी, और दूसरी तरफ संसद में खड़े होकर के बयान दिया जा रहा है कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो का कि भारत के सरकारी ऑफिशियल इसमें शामिल हैं। या तो वो अपने सियासत के कारण बयान दे रहे हैं संसद में और हमारे देश की सरकार ने अभी तक इसका खंडन नहीं किया है। तो कौन सही है, कौन कितना गलत है, या सियासत सही है, यह समझ में नहीं आता। लेकिन इतनी बात तो तय है कि जिस तरह से भारत पर आरोप लगे हैं, ये गंभीर आरोप हैं, भारत की संप्रभुता पर हमला है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और जस्टिन ट्रूडो को भारत से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। ये तो बहुत सीधी सी बात है और इस पर विदेश मंत्रालय को भी आपत्तिजनक और अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए कि कनाडा को यह हक नहीं बनता कि वो हमारे देश के बारे में ऐसे गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी देखते हैं। दूसरा पहलू देखिए कि कनाडा में मैक्सिमम जो है लोग हिंदुस्तान के जाते हैं, वहां कमाते हैं और वहां से पैसे यहां लाते हैं। क्या इस तरह की जो तलखी आई है दोनों देशों के रिश्तों के बीच, क्या इसका असर उन संबंधों पर नहीं पड़ेगा? क्या उन बेरोजगार या पाने वाले या रोजगार पाने वाले लोगों पर नहीं पड़ेगा, या भारतीय नागरिकों पर नहीं पड़ेगा? यह थोड़ा विषम परिस्थिति का मामला है, इसको सरकार के द्वारा गंभीरतापूर्वक निपटाया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इस पर अपनी राय देना मत भूलिएगा। आपके कमेंट के इंतजार में रहूंगा, जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।